الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا سیشن نماز کے مسائل کا کتاب الصلاح تفہیم السنہ محمد اقبال کیلانی صاحب کی انشاءاللہ تعالی اس کا ہم طہارت کے مسائل الطہارہ کا چیپٹر کرنے لگے ہیں۔ مسئلہ نمبر 19، جماع کے بعد غسل کرنا فرض ہے نا۔ جماع کا ہم سب جانتے ہیں کیا ہے، یہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق۔ حدیث اس کے بارے میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جلس بین شعیبہ شعیبہ اربع ثم جہدها فقد وجب الغسل، متفق علیہ، یعنی کہ دونوں شیخین نے اسے متفق علیہ یعنی کہ اتفاق کیا ہے اس کے اوپر، مسلم اور بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے دین میں جس کے بارے میں ہمیں نہ بتایا ہو۔ تو کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی عورت سے جماع کرے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرض ہے، ابلیگیٹری ہو جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے بچے کو نہیں بتاتے اور وہ لاشعوری میں غسل نہیں کرتے اور اتنا ٹائم گزر جاتا ہے، کئی دفعہ تو ہم اتنی شرم و حیائی کرتے ہیں کہ ان کو اصل مسائل بھی نہیں بتا رہے ہوتے، تو باپ کو بیٹے کو اور ماں کو بیٹی کو بتانا چاہیے۔ باہر کے لوگ تو بتا دیتے ہیں ان کو، لیکن گھر والے نہیں بتاتے۔ تو مسئلہ 20 ہے، احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت جو ہے مسئلہ نمبر 50 میں انشاءاللہ آئے گی، وہ ہم وہاں پہ پڑھ لیں گے پھر، کیونکہ جب احتلام ہو جاتا ہے، احتلام کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لڑکا جو جوان ہو گیا اب اس کو احتلام آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک پانی کا آنا نا، ایک خاص موقع پر جو کہ انسان کو جذبات کے ذریعے آتا ہے، تو وہ تو انشاءاللہ اس کا پھر میں ڈیٹیل میں ہم مسئلہ نمبر 50 میں کریں گے۔ تو غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اغتسل بچی اوپر، بس سوری من بچی اوپر کر دیں۔ الجنابت، ایک منٹ، اذا اغتسل من الجنابت یبدأ ویغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ ثم یتودع وضوءہ للصلاة ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر حتى إذا رأى قد استبرأ ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق علیہ۔ عربی کی سوچیں، ویسے عربی پڑھنا اور قرآن کی عربی پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عربی کتنی آسان کر دی ہے نا انسانوں کے لیے پڑھنی۔
حالانکہ جہاں پہ زیر زبر پیش کچھ حد تک ڈلے ہوئے ہیں، لیکن کئی جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے خود ہی پڑھنا ہوتا ہے اس کا نا۔ تو قرآن کی عربی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت، قرآن آسان ہے نا پڑھنے والوں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، یعنی سب سے پہلے کیا دھونا ہے؟ اپنے ہاتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھوں پہ جو گندگی لگی ہے اس کو دور کر لیا جائے اس سے پہلے کہ کسی برتن کو ہاتھ لگائے، تو اس لیے ہاتھ دھونے ضروری ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر اب طہارت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 لپ پانی میں 3 لپ سر میں ڈالتے پانی کے۔ 3 لپ کیسے تھے؟ پانی لیا، سر میں ڈالا، رائٹ سائڈ سے شروع کیا جاتا ہے نا، دائیں طرف سے، دائیں طرف سے ہی ہر کام شروع کیا جاتا ہے، غسل کرنا بھی، پانی بھی جو سر کا دائیں طرف ہے اس پہ ڈالا جاتا ہے پہلے۔ تو 3 لپ پانی ڈالنا یعنی کہ 3 بار ہاتھ میں پانی لے کر، تو یہ جنابت کا غسل جو ہوتا ہے اس میں بس بالوں کی جڑوں پوری تک پانی پہنچ جائے، پوری بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ عورت اپنی چوٹی نہیں بھی کھولتی نا تو کوئی بات نہیں، ہاں اس کے سر کے پورے بالوں کی جڑوں تک پانی ہونا چاہیے۔ اگر اس کی گت نہیں بھی کھولتی، اس کی چوٹی نہیں بھی کھولتی تو کوئی بات نہیں، لیکن جڑیں تر ہو جائے، جڑوں تک پانی پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ دونوں پاؤں کو جنی دھوتے، کیونکہ پاؤں نہیں دھوئے تھے نا، میں کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے انسان غسل کرتا ہے تو پاؤں تو پھر بھی گندے ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے پاؤں جو ہے آخر میں دھو لے، دھونے چاہیے آخر میں، پاؤں یاد نہ بھول جائے۔ اسے مسلم اور بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو کیا ہے، اب ہم اس کا وضو جیسے ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے جلدی کرنا چاہیے اس میں وضو، یعنی کہ اور نہیں ہے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی شرمگاہ کو ہی دھو کے سو جائیں۔ وضو کر سکتے ہیں، وضو کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں تو وضو کر لیں، اور ورنہ اگر نہا سکتے ہیں تو نہا لیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اچھی طرح جب وہ غسل کرنا ہے تو غسل کی نیت بھی ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ پوری نیت کے ساتھ غسل خانے میں داخل ہوتے ہوئے بعد میں پھر آپ نے ہاتھوں کو سب سے پہلے جا کے ہاتھوں کو دھونا ہے اور مل کے دھونا ہے، ہاتھوں کو مل کے دھونا ہے، صابن لگا لیتے ہیں تو کوئی لیکن پہلے ان کو ملنا ہے کہ گندگی اتر جائے، پھر اور کچھ کر سکتے ہیں۔ تو دھو لیا دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ کلائیوں تک دھوتے ہیں، اس وقت بھی کلائیوں تک نہیں، دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے بس، یا اپنے جو گھٹنے جہاں پہ ہوتے ہیں گھٹ وہاں تک اچھی طرح دھو کے مل کے پھر شرمگاہ دھونی ہے، دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے دھونی ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، لوٹا ہے تو وہ پکڑے، اور بائیں ہاتھ سے دھونا ہے۔ پھر ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پھر ہم نے جو بھی کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہاتھ تو دھوتے ہوتے ہیں تو ہاتھ ہم نے دھونے ہیں نا؟ کیونکہ ظاہر ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے ہیں، طہارت استنجا کیا ہے، تو اب ہم استنجا کے بعد ہم نے ہاتھ تو دھونے ہیں، ہاتھ بھی دونوں گھٹوں تک اچھی طرح دھوئیں گے آپ مل کے، صابن لگا کے، اور پھر صابن نہیں میسر تو ایسے مٹی کے اوپر ہی ہاتھ ڈال رکھ کے مل کے تو آپ کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کلی کرنی ہے، اور کلی اور ناک میں پانی اکٹھا بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے اسی پانی سے ناک میں بھی، اور
मुंह में भी डाल लिया 3 बार। फिर क्या करते हैं, अपना वुजू अच्छा जैसा वुज़ू मुंह धोते हैं 3 बार, और फिर अपना दायां बाजू हाथ हाथ जी, समेत और फिर बायां बाजू हाथ समेत धोते हैं। फिर सर का मसा किस तरह करते हैं कि उंगलियों में ऐसे पानी डाल के हाथों पे, तो हाथ तर करके पानी से ऐसे छिड़क दें कि बहुत ज्यादा पानी भी ना हो। अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, शहादत की उंगली है, और अंगूठा है, उसको दोनों हाथों का साइड पे रहने दें, अलहदा कर लें। और जो 3 उंगलियां हैं और पाम है आपका हथेली, और 3 उंगलियां इकट्ठी जोड़ी हुई, उनको अपने सर के आगे वाली जड़ें जो हैं, उनसे शुरू करके आगे वाले बालों से एंड तक जाना है और फिर वापस लाना है उसी को ही। तो फिर क्या करना है हमने कि अपने हाथों की जो इंडेक्स फिंगर है, जो हमारी शहादत की उंगली है राइट की, और दूसरी उंगली भी दूसरे हाथ की, उससे अपने कानों में उन्हें डालना है। और उसी वक़्त आप जो कानों के पीछे आपके अंगूठे हैं, क्योंकि उनको टच नहीं किया हुआ है ना किसी चीज़ ने अभी, तो कानों के पीछे अपने अंगूठों से ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, साफ करना, पीछे से कानों के, और उंगली से कानों के अंदर से। तो ये हमारा मसा हो गया, बस 1 बार करना है, 3 बार नहीं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, पाँव धोने हैं, सॉरी, पाँव नहीं धोने, क्योंकि ये गुस्ल में अगर आप धो भी लेते हैं, आपका साफ-सुथरा है वहाँ पे, तो वो और बात है, लेकिन सुन्नत से यही है कि आप पाँव, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के भी आखिर में धोते थे। गुस्ल करने के बाद आखिर में पाँव धोते थे। तो फिर पाँव बाद में धोने, 3 लप पानी के डालने हैं। मसा करने के बाद 3 लप पानी के आपने, जैसे कि जहाँ पे बाकी हदीस में बताया गया है, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। राइट साइड से शुरू करके अपने जिस्म पे 3 बार पानी डालना है। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इतना-इतना डालेंगे और फिर ही होगा। तो अब मसला नंबर 22 है, इंशाल्लाह मैं आगे कर दूँ आपके लिए। ठीक है। मज़ी ख़ारिज होने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, है ना? तो इसका भी क्योंकि ये जो व्हाइट सा पानी सा आता रहता है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है इसके बारे में कि अन अलीयुन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال كنت رجلا مداء فكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदी का मरीज था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करने से शर्माता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरे निकाह में थी, यानी कि दामाद होने के नाते वो बेटी के लिहाज करते हुए शर्माता था मैं ससुर से बात करते हुए। चनाचे ने मैंने हजरत मिकदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शर्मगाह धोए और वुजू कर ले। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है, यानी कि अगर मजी आती है तो क्या करे, वो पानी होता है ना, पानी सा आता है, और थोड़ा सा अंडरवियर सा भी हम औरतों का भी गंदा हो जाता है, तो वो, तो कई तो बहुत ज्यादा आती रहती है मदीना, तो वो पाक होती है, नापाक नहीं होती, ठीक है, पाक होती है वो, लेकिन उससे वुज़ू कर लेना चाहिए और अपनी शर्मगाह को धोना धो लेना चाहिए कि जो चीज़ अंदर से आई है वो निकल जाए, साफ हो जाए, और फिर वुज़ू कर ले, तो बस वो नमाज़ पढ़ सकता है, उसको नहाने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु आलम। बीमारी की वजह से मुकम्मल पाकीज़गी मुमकिन ना हो तो इसी हालत में नमाज अदा करनी चाहिए। अलबत्ता हर नमाज के लिए नया वुज़ू करना ज़रूरी है।
बीमारी की वजह से, है ना? कोई बीमारी है लाहिक जिसकी वजह से पूरी तरह इंसान पाकीज़ा पाक नहीं हो सकता, पाकीज़गी इख्तियार नहीं कर सकता, यानी कि हिल नहीं सकता। अब जितना वो कर सकता है उतना ही उसके करेगा, या कोई उसे अच्छी तरह नहा दे तो वो और बात है। लेकिन वो खुद जितना पाक हो सकता है उतना वो मुमकिन हद तक करेगा। फिर उसे इसी हालत में नमाज अदा करनी चाहिए। अलबत्ता हर नमाज के लिए क्या करेगा? वुज़ू फिर दोबारा कर ले। तो इसमें क्या है कि कई दफ़ा होता है कि हम लोग फिर क्या कहते हैं, वो मैं बीमार थी ना 3-4 हफ़्ते के लिए, तो मैं नमाज़ अब सारी कज़ा करके पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं साफ़ नहीं थी इतनी। मेरा दिल नहीं मानता था। यानी कि कई दफ़ा हम दिल पे भी रख देते हैं दीन को आके। मेरा दिल नहीं मानता था इसलिए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना करे कि इंसान वो नमाज़ें छोड़े हुए है और हो सकता है कि वो बीमारी हमारी मरगल मौत हो, यानी वो मौत की ही बीमारी हो। तो मर्दुल मौत में क्या होता है? जब वो मौत की मर्ज़ लाहिक होती है, तो उस वक़्त भी तो कोई बीमारी ही होती है ना, किसी न किसी वजह से हम कहते हैं वो फलाँ बीमार था, उसे ये हुआ, उसे वो हुआ। तो अब हमें नहीं पता कि उससे हमने ठीक भी होना है दोबारा कि नहीं होना, कि उसी मर्द में हमारी मौत आ जाएगी। तो क्या हम नमाज़ें छोड़ देंगे? छोड़नी नहीं है, नमाज़ किसी हालत में छोड़ी नहीं जाती। इल्ला ये कि कोई सोया रह गया, सोया हुआ है, या कोई कोई दीवाना है, जिसको पता नहीं है। जाके कोई बेहोश है, जब तक वो होश में नहीं आ जाता। दीवाना जब तक ठीक नहीं हो जाता, और बच्चा जब तक जवान नहीं हो जाता, जब जिन बच्चे के लिए भी है ना, तो कि वो नमाज़ें पढ़नी शुरू करे, उसकी आदत डालें और ये वो। लेकिन जहाँ पे है, जो हम बीमारी की वजह से बात कर रहे हैं, जो बड़ों के लिए क्या है कि वुज़ू करता रहे हर नमाज के लिए, और जितनी पाकीज़गी इख्तियार कर सके वो कर ले, और फिर नमाज पढ़ ले, अल्लाह सुब्हाना तआला से मदद माँगे इंशाअल्लाह ताला। अन फातिमाता बिनते हुबैश रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्हा अन्नहा कानत तुस्ताहादु फ़क़ाल लहा फ़क़ाल लहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना दमुल हैद फ़इन्नहु दमुन अस्वद युरफ़ु फ़इज़ा काना ज़ालिक फ़अमसिकी अनिस सलाति फ़इज़ा कानल आखर फ़तवद्दई वसल्ली फ़इन्नमा हुवा इर्क़। रवाहुल अबू दाऊद व निसाई। हसन दर्जे की ये हदीस है। एक जिसकी शर्त पूरी नहीं हुई होती, इसलिए इसे हसन दर्जे पर रख देते हैं, लेकिन ये सही हदीस ही होती है। हजरत फातिमा बिनते अबी हबीश रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है बाजी कि ऊपर वो कर दे। मरीजा थी। एक ठीक है, हो गई। हो सॉरी गए बाजी, पहले इंशाल्लाह। कर मेरा माइक ऑफ था, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ जी। ठीक है इंशाल्लाह, वो मैं अपनी मैं किताब भी से ऐसे ही पढ़ कर रही दी थी, होती हूँ ना, बोली जा तो रही थी। हाँ जी, मैं मुझे पता है। हाँ जी। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो हजरत फातिमा बिनते अबी हबीश रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि वो मरीजा थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, जब हैज का खून हो तो ये स्याह रंग का होता है, यानी हैज का खून जो है वो उसका फर्क होता है, और बदबूदार भी वो होता है, जी। जो पहचाना जाता है। स्याह रंग का होता है जो पहचाना जाता है। लिहाजा जब ये हो तो नमाज ना पढ़ो, यानी नमाज से रुकी रहो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा खून हो तो वुदू करके नमाज पढ़ लो, यानी कि फिर वो बीमारी है, क्योंकि ये इस्तिहादा का खून है। इस्तिहादा तो एक रग से निकलता है ये खून, जो है ना, इस्तिहादा का खून, जो कि हम कहते हैं कि पीरियड तो मेरे, ये पीरियड के दिन नहीं है, ये तो सारा महीना ही नहीं खत्म हो रहा खून, तो वो इस्तिहादा का खून होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक रग होती है जो फट जाती है और उससे निकलता है खून।
जो भी उसके साथ होता है। इसे अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है। यानी कि ये मुस्तकिल बीमारी, ये जो है मुस्तकिल बीमारी, पेशाब या मजी के कतरे खारिज होना या औरतों को इस्तिहादा का खून आना। यानी कि मर्दों के में ज्यादा ज्यादा ये होता है कि पेशाब या मदी के कतरे खारिज होते रहते हैं, उनकी शर्मगाह से गिरते रहते हैं। वो वुजू कर भी लिया, गुस्ल कर भी लिया, फिर भी कतरा गिर गया, और औरतों को इस तरह खून आता रहता है। तो इसकी सूरत में पजामा या शलवार वगैरह के नीचे या अंडरवियर जो भी आपने लंगोट वगैरह इस्तेमाल किया हो, उसके लिए तो नापाक होगा। अंडरवियर या लंगोट तो नापाक होगा, लेकिन पजामा या शलवार वगैरह मुकम्मल पाक होना चाहिए। यानी कि वो उसमें तो आप तो उसको क्लीन करके साफ करके आपने वुज़ू वगैरह करके तो नमाज शुरू की। अब वो फिर अगर नापाक हो, उसको यानी कि वो खून लग गया है या फिर मज़ी आ गई है, तो फिर आप जो है नमाज पढ़ते रहेंगे, लेकिन पजामा या शलवार जो है वो मुकम्मल तौर पर पाक होनी चाहिए। ऊपर जो पहना हुआ है वो पाक हो। तो इसमें फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें बहस-ओ-मुबासा नहीं करते। हाइज़ा और जुम्बी मस्जिद से गुज़र सकते हैं, ठहर नहीं सकते। यानी वो गुज़र तो सकते हैं मस्जिद से, लेकिन वहाँ पे ठहर नहीं सकते। अब कुछ मसाजिद भी ऐसी हैं आजकल जहाँ पे भी हमारे जहाँ पे औरतें जाती हैं, औरतों की साइड पे और बैठने के लिए और कोई जगह नहीं होती, खासकर जब कोई वफ़ात पा जाए, तो बहुत औरतें इकट्ठी होती हैं। उनमें हाइज़ा भी होती हैं, उनमें सब जुम्बी तो नहीं होंगी, लेकिन हाइज़ा होती हैं। तो उनके मसले मसाइल जो हैं, तो जहाँ पे क्या है कि हाइज़ा और जुम्बी मस्जिद से गुज़र सकते हैं, ठहर नहीं सकते। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा, आपको नज़र आ ही रहा है, ठीक है, 1 मिनट। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नाविलिनिल खुमराता मिनल मस्जिद, ये आपके सामने है। हाँ जी। क़ालत, सॉरी मेरी किताब के दूसरे पेज पर, क़ालत फ़क़ुल्तु इन्ननी इन्नी हाइज़ुन फ़क़ाल इन्नहा हाइज़तुका हाइज़तुकी लैसत फ़ी यदिकी, रवाहुल मुस्लिम। यानी कि अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाविलीनिल खुमराता मिनल मस्जिदी, क़ालत फ़क़ुल्तु इन्नी हाइज़ुन फ़क़ाल इन्न हाइज़तकी लैस लैसत फ़ी यदिकी, रवाहुल मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मस्जिद से जाए नमाज लाने का हुक्म दिया, यानी कि मस्जिद से जाए नमाज ले आओ। मैंने अर्ज किया, मैं तो हालते हैज में हूँ, यानी मैं तो जा नहीं सकती, मस्जिद में कैसे जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैज तेरे हाथ में तो नहीं लगा है, यानी हाथ हाथ में तो नहीं है हैज। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। यानी कि मस्जिद से जाके जाए नमाज ला सकते हैं, मस्जिद से कोई चीज लानी पड़े तो वो ला सकते हैं, लेकिन मस्जिद में ठहर के वो इबादत की नीयत से जो ठहरना होता है और क़याम करना होता है, वो नहीं कर सकते। यही इससे मसला हमें मिल रहा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मस्जिद से जाए नमाज लाने का कहा था। याद है, जाए नमाज, जिसके ऊपर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज क्या करनी थी, पढ़नी थी। नमाज का कपड़ा ही है ना फिर एक के लिए, तो नमाज का कपड़ा, तो क्या नमाज के कपड़े को हाइजा औरत हाथ लगा सकती है, इसका मतलब ये है। हम्म
तो आगे वाली हदीस भी एक और है, इसे भी ले लीजिए। अन जाबिरिन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल काना अहदुना यमुर्रु फिल मस्जिदी जुनुबन मुजताजन रवाहुल ए, रवाहुल सईद इब्न मंसूर। जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हालत जनाबत में मस्जिद से गुजर जाया करते थे। इसे सईद बिन मंसूर ने रिवायत किया है। गुजर जाया करते थे यानी कि रास्ता मस्जिद नबवी से होकर एक गली से दूसरी गली का रास्ता जाता था। मस्जिद नबवी दरमियान में थी और मस्जिद नबवी एक रास्ता भी था एक गली से दूसरी गली की तरफ जाने के लिए। तो लोग क्या करते थे, वो फिर हम शॉर्टकट भी लेते होते ना, वो पूरी गलियों अ, यानी के जाने के बजाय इधर से सीधा चले जाए। तो वो मस्जिद, आपको पता है जैसे हमारी आजकल की मस्जिदें हैं वो तो नहीं थी, है ना? क्योंकि गलियों का रास्ता भी होता था, बाज़ारों का रास्ते भी, तो मस्जिद बनी हुई। और मस्जिद से मस्जिद नबवी जो है, आज भी आप देखें तो कितने रास्ते, कितनी सड़कें निकलती हैं ना मस्जिद नबवी से। कोई इधर को है, कोई उधर को है, तो सारे रास्तों से मिडल में तो ये है कि कोई एक रोड से दूसरी रोड की तरफ वॉक करके जा रहा है, तो वो मस्जिद नबवी से होता होता उस जगह से होते होते चला जा सकता है। अब तो बाहर बाहर से भी जाया जा सकता है क्योंकि बाहर सेहन भी है। लेकिन उस वक़्त तो वो छोटी-सी जगह थी, उसी में से ही गुज़र के एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार अपने घरों तक भी ऐसे चले जाते थे। तो ये रास्ता, अगर रास्ते की तरह ले रहे हैं उसको, तो उससे गुज़रा जा सकता है, या कोई चीज़ उठानी हो तो उठाई जा सकती है, लेकिन वहाँ पे ठहरा नहीं जा सकता। तो मसला नंबर 25 है। लेकिन हमारी जो मस्जिदें हैं, मल्टीपर्पस रूम जो होते हैं, हमारी औरतों के ज्यादातर मल्टीपर्पस रूम ही होते हैं, यानी कि और कामों के लिए भी उससे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए उनमें जा सकते हैं जहाँ पे नमाज जो है 5 वक्त की पाबंदी के साथ नहीं हो रही होती। तो मसला नंबर 25 है, रफा हाजत के लिए पर्दा का एहतमाम करना जरूरी है। अन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु काल, एक मिनट में आपके लिए ऊपर करते थोड़ा सा। قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض। رواه الترمذी व अबू दाऊद व दारमी। सही रिवायत है जी। सही हदीस है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा हाजत के लिए बैठने लगते तो जमीन के करीब पहुंचकर कपड़ा उठाते ताकि बेपर्दगी ना हो, यानी कि बिल्कुल जमीन के करीब पहुंचकर कपड़ा ऊपर करते, पहले नहीं कर लेते सारा। इसे तिरमिजी अबू दाऊद और दारमी ने रिवायत किया है। हमें पता है कि पहले टॉयलेटें ऐसे ही टॉयलेटें तो नहीं थी, यानी कि गुसल खाने, वो तहारत खाने नहीं थे, कुछ भी नहीं था, क्या था, जो बाहर ही तो करने जाते थे, तो वो एक दूसरे को देख भी सकते थे कभी कि क्या कोई एहतमाम कर रहा है। और खासकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो हर हरकत पे नजर रखते थे साहबा किराम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, ताकि वो भी वही करें। सीखना मकसूद था ना, अतात मकसूद थी। तो हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है, वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफा हाजत का इरादा फरमाते तो बस्ती से इतने दूर निकल जाते कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना पाता, यानी दूर चले जाते। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। तो अगर बाहर करने जाना पड़े तो फिर लोगों के सामने बैठने की बजाय दूर दूर निकल जाना चाहिए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं है, घरों में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है। फिर भी हम जितनी सहूलतें मौजूद हैं उससे भी फिर हमें फिर भी एहतियात करने की ज़रूरत है। पेशाब से एहतियात ना करना अज़ाब कब्र का बायस है। ये भी फिर अल्लाह सुब्हान तआला के नबी ने फरमाया, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आम्मतु अज़ाबिल क़ब्रि फ़िल बौली फ़स्तन
ज़ीहू मिनल बउल, रवाहुल बज़्ज़ार व तिबरानी व हाकिम व दारक़ुतनी। सही हदीस है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हमें पता चलता है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, अन्हुमा यानी बाप और बेटा दोनों ही सहाबी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में ज्यादातर अजाब पेशाब की वजह से होता है, लिहाजा इससे बचो। इसे बाजार तिबरानी हाकिम और दारे कुतनी ने रवायत किया है। तो यानी कि पेशाब की छींटें जब पड़ती हैं तो उससे जो नहीं बचता, पेशाब की छींटे अपने जाहिर है कि मर्द जो है अगर वो खड़े होकर पेशाब करेगा तो किधर किधर छींटे पड़ेंगी ना। और अगर वो फिर भी बैठकर भी करता है और अपनी छींटों से नहीं बचता, अपने आप को ना कपड़ों को ना अपने जिस्म को बचाता है, जिस्म के हिस्सों को, तो जिधर मर्जी छींटें पड़ती रहे पेशाब की, जिस्म पे पड़ता रहे, उसे कोई बादर नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के नबी ने फरमाया कि अज़ाब कब्र होता है उसके ऊपर। ज्यादातर लोग ज्यादातर अज़ाब कब्र के में मुब्तला होने वाले पेशाब की वजह से होते हैं, लिहाजा इससे बचो। बचने का हुक्म है। तो माओ के लिए क्या हुक्म है? छोटे बच्चों को, जब लड़के छोटे होते हैं, खासकर लड़के, क्योंकि लड़कियां तो खड़ी होके करती नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए तो लड़की का पेशाब जो है नीचे सीधा जाएगा, लेकिन लड़के का पेशाब जो है वो दूर की तरफ जाएगा और साइडों पे सीधा जाएगा, तो वो दूर तक पहुंच सकता है। तो क्या है कि पेशाब लड़कियों को भी बचना चाहिए, ये नहीं है कि वो अपने जितना मर्जी गंदे कर लेंगे तो उनको नहीं अजाब होगा, उनको बचना चाहिए। पेशाब की वजह से अजाबे कब्र, कभी सोचा? पेशाब की वजह से अजाबे कब्र, पेशाब के छींटों से न बचना, एहतियात न करना। माएँ अपने छोटे बच्चों को आपके हाथों में, अपने नवासे नवासियाँ नवासे हैं, पोते हैं, जो भी हैं, उन सब को तहारत के मसाइल बताने चाहिए कि कैसा बेटा तहारत करते हैं, कैसे साफ कर लेते हैं अपने आप को, बताना चाहिए। ना कि हम 10 साल के बच्चे को भी खुद ही धो-धो के दें। ख्याल रखें। उन्हें बताना चाहिए, उन्हें आना चाहिए कि कैसे वो इस्तिंजा करें और कैसे वो पाक साफ हो सके, कहीं भी हों, वो चाहे स्कूलों में हों, कहीं भी हों। दाएँ हाथ से इस्तिंजा करना मना है। अन अबी कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम या ला यमस्सन्ना अहादुकुम ज़करहु बियमीनिही व हुवा यबूलु वला यतमस्सह मिनल खलाई बियमीनिही वला यतनफ़्फ़स फिल इनाई रवाहुल मुस्लिम। अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी पेशाब करते हुए अपनी शर्मगाह को दायां हाथ ना लगाए। आज बहुत जरूरत है बाजू इसको ऊपर कर बताने दें, की, बाजू ऊपर कर दें प्लीज। बहुत जरूरत है अब हम्म, इसको बताने की, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे खुद ब खुद राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं, इनके हाथों में पकड़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं ये तक सोचती हूँ, जो मेरा तजर्बा भी है, कि जब बच्चा छोटा सा होता है ना, जिस हाथ में आप उसको चीज देना पकड़ाना शुरू कर देना, वो हाथ उसका मजबूत हो जाता है हो जाता पकड़ने है। के लिए, है ना। तो वो फिर उससे ज्यादा आसानी से पकड़ सकता है। लेकिन माएँ कहती हैं नहीं, नहीं, वो तो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने साइंस को ही लेना है, उन्होंने इन्हीं को लेना है, मानती तो नहीं है। वो कहती है नहीं, नहीं, साल तक तो बच्चे को आप जो भी दोनों हाथ इस्तेमाल करने चाहिए। जिस हाथ में भी आप पकड़ा दें, पकड़ाना चाहिए। बच्चे को दोनों हाथों में पकड़ाना चाहिए। अब दोनों हाथों में पकड़ते-पकड़ते मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेफ्ट हैंड को ज्यादा इस्तेमाल फिर करना शुरू करते हैं, वो खाते पीते भी लेफ्ट हैंड से फिर है, लिखना भी जी। लेफ्ट हैंड से शुरू कर देते, क्योंकि उनका डेवलप वो लेफ्ट हैंड ज्यादा स्ट्रांगली हो गया। तो ये फिर प्रॉब्लम हो गई। तो बेहतर ये है कि जब भी बच्चा लेफ्ट में पकड़े, उसे दाएं में पकड़ा दो। यानी कि अगर एक चीज पकड़ी हुई है उसने लेफ्ट में, तो दाएं में दूसरी पकड़ा दो, ताकि उसको पता हो कि ये हाथ में इस हाथ को इस्तेमाल करना है। खासकर उसकी फेवरेट फूड दाएँ हाथ में दो, उसे पता हो कि इसी को लेना है। बाएँ हाथ को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाएँ हाथ को किसी और चीज़ में बिज़ी कर दें, उसमें कोई टॉय वगैरह कोई शै पकड़ा दें, कोई स्पून वगैरह पकड़ा दें, कुछ पकड़ा दें, ताकि वो बच्चा बिज़ी हो जाए, ब बहुत छोटा बच्चा है तो अगर।
लेकिन उनका दायाँ हाथ इस्तेमाल कराया जाए खाने के लिए। लेकिन जब आप तहारत कराएँ तो उनको बताएँ, उस वक़्त बताते रहें कि वो लेफ्ट हैंड, यूज़ योर लेफ्ट हैंड, आई एम गोइंग टू यूज़ माय लेफ्ट हैंड। मैं अपना दाया बायाँ हाथ इस्तेमाल करने लगी। हम बायाँ हाथ इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं हम अपने आप को क्लीन करने के लिए। तो बच्चों में आप ऑटोमेटिकली आदत फिर डल जाएगी उनको। लेकिन अगर आप बताते नहीं, आप करते ही रहते हैं, खुद ही कर के उनको कुछ भी नहीं कहते, ना मना करते हैं कि कोई बात नहीं, तो फिर क्या होता है कि उनकी आदत में वो जा जाती है, डल जाती है आदत, है ना? जी, मेरा पोता एक बार जी वो बाएं हाथ से ही करता है सब कुछ। मैं सब जब वो कुछ आता बाएँ है हाथ तो से। मैं बहुत 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 उसे कहती हूँ, तो फिर लग जाता है दाएं हाथ से। हाँ, खाता बस भी बाएं हाथ से ही है, हाँ कहते जी। रहें। बहुत कहती हूँ मैं, हाँ जी, जब वो आता है ना इधर हमारी तरफ, मेरी पोती मैं बाएँ बहुत हाथ कहती से ही हूँ। खाती है और बाएँ हाथ जी, से ही लिखती है, लेकिन जब वो उसे भी ऐसे कहें करता है, हाँ जी। लिखती तो नहीं वो दाएँ हाथ से, लेकिन फिर पकड़ लेती है, नवाला खा लेती है दाएँ हाथ में। ये फिर खाने लग जाता है दाएं हाथ से हाँ। ना। हाँ लेकिन ये जी। है कि वो भी लिखती जो है वो बाएँ से ही है। तो इसी में मैं तो शुरू से कहती रहती होती हूँ कि नहीं, बायाँ हम्म। नहीं, दायाँ दो इनको, दायाँ दो। मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि आप हर वक़्त इसे है ना कहा करते हैं, हाँ, वो हर कहता वक़्त ही हम दिया कहते करें हैं हर उसको। वक़्त कहते हैं, हाँ जी, लेकिन फिर भूल जाता है। हुँ। हाँ जी, माशाल्लाह आप तो वो 11वें साल में है, हाँ जी। हाँ, वही ना, फिर अब आदत हाँ तो जी, जो है उसको कहते रहें, बस कहते हाँ रहने में ही जी, भलाई है कि उसको हाँ कहते जी। रहने कि ताकि वो 10 साल का दायाँ हो गया, हाथ ही हाँ जी। इस्तेमाल करे। लेकिन ये भी उसका ख़्याल रखें कि वो कहीं इस्तिंजा के लिए दायाँ हाथ तो हुँ, नहीं इस्तेमाल कर रहा। यानी कि अब हाँ उल्टा जी, करेगा तो वो फिर जी, ज़ाहिर है कि बाएँ से खा रहा है, लिख रहा है, जी, और फिर सोचे कि अब दूसरा हाथ जो है वो इस्तिंजा के लिए मैं इस्तेमाल कर लूँ, फिर वो नहीं होना चाहिए। है ना? जी, तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। छोटे बच्चों को आदत डालनी जी, चाहिए और उसको देनी चाहिए ये तालीम फिर बच्चों को। जी। कहता है मेरा बेटा, कहता है बहुत कहते हैं हम, हर वक़्त सुन्ना हम हाथ कहते है, हैं, उसको तो फिर सुन्नत भूल वाला जाता, हाथ हाँ ये जी। है फिर जे यानी कि उसको बताएँ कि ये सुन्ना हाथ है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सिखाया है। तो हमने जब तहारत करनी है तो अपने आप को वॉश करना है तो हमने लेफ्ट से करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी पैदा करे हम सब के लिए। दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मना है, और फिर बैतुल खला में दाखिल होने से कबल जो दुआ पढ़नी मसनून बस है, वो हम देखते हैं कि जब बैतुल खला में हम दाखिल होते हैं तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए हमें। अगर कोई भी ना आती हो तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो पढ़ ही सकते हैं ना, जी, क्योंकि अगर शैतान से फिर भी पनाह मांग लेनी चाहिए, ना भी आती हो तो कोई और दुआ। तो बैतुल खला में दाखिल होने से कबल ये दुआ पढ़नी मसनून है। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल खला क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, मुत्तफ़िक़ अलैहि है। इसमें दोनों के एक ही राय है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब बैतुल खला में दाखिल होने का इरादा फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, इलाही मैं खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। आज ये भी नहीं है कि हम अपने दरवाजों के बाहर लिख के लगा दें, गुस्ल खाने के लगाई दरवाजों हुई के है मेरी बाहर। पोती ने तो सभी दरवाजों के बाहर है ना, जो बाथरूम हाँ, टॉयलेट है उनके बाहर है। अब तो मिलती भी है, दुआओं के कार्ड भी मिलते वो हैं। तो उसने लिख कर लगाई हुई है, हाँ जी। हाँ, लिख कर लगाए जाती और है तो जब उनको। जाती है तो वहां से ही शुरू कर देती है, हाँ जी। हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करना ज़रूरी है जी, कि अपनी दुआ पढ़ के गुस्ल खाने में दाखिल हूँ। तो दुआ भी जी, क्या है? क्योंकि इसका मतलब है खबीस जिन्न और खबीस जिन्नियाँ गुस्ल हम्म, खानों में होते हैं। यही है ना? तो जी, हम उनकी उनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से पनाह पनाह चाहते माँग हैं। के जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें उनसे बचाना, है ना? हम तेरी पनाह माँगते हैं। क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस। तो ये दुआ याद करनी चाहिए। ये जिसको नहीं याद वो याद कर ले और उसको वो पढ़ा करे ये दुआ ज़रूर, गुस्ल खाने में जाने से पहले। ये नहीं है कि बातें करते अंदर जाए और बातें करते बाहर निकले, ना?
तो जी, फिर ये है कि बात आदत डालेंगे तो फिर ही होगी। जब हम गौर-व-फ़िक्र ना करेंगे, हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, है ना? कोई बात नहीं, हदीस ही तो है, सुन्नत ही तो है ना? तो फिर गड़बड़ है, जहाँ पे गड़बड़ आ जाती है जब हम उसकी परवाह नहीं करते। तो बच्चों से, छोटे-छोटे बच्चों से जो हमारे हाथों में है, जो हमारे मातहत है, अपने बेटों को भी बताएँ, अपनी बेटियों को भी बताएँ, जी, नहीं पता उनको तो जी, न अगर पता है तो उनको रिमाइंड कराते रहें। अगर कोई बातें करता अंदर जा रहा है, बातें करता बाहर निकल जा रहा है, तो रोकें उसे, टोकें। पहले दुआ पढ़ो फिर बाहर निकलो। यानी कि बाहर निकल के पहले दुआ करो फिर बात करो। अंदर जाने से पहले खड़े हो, वो सोचो क्या करने जा रहे हो, दुआ यानी मांग के और फिर अंदर दाखिल हो। लेफ्ट फुट इन, यानी कि बायां पाँव जो है वो अंदर जाना चाहिए पहले गुस्ल खाने के, जैसा कि बाहर के लिए भी ऐसा ही है। दरवाजे के बाहर जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो वो भी बायां पाँव बाहर जाते हैं, है ना? तो ये बैतुल खला में जाने के लिए भी बायां पाँव जो पहले अंदर रखते हैं, तो ये दुआ जो है पढ़ी जाती है। बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेते हैं बाद में, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाती है इसलिए कि क्योंकि हमारे गुस्ल खानों के साथ ही टॉयलेट है। तो अगर आप जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उसके बारे में भी आता है कि ये आपके प्राइवेट पार्ट के जो ये है दूसरी मखलूक अल्लाह ताला की पहले है, अल्लाह होता था ताला बाजी, टॉयलेट अलग होती थी, बात हाँ, अलग पर्दे होता था। डाल देते अब तो हैं तो एक जगह ही, अब तो एक जगह ही सब सभी कुछ हाँ, बना तो रहे वो यही है ना, तो फिर वो करना चाहिए इसका इस्तेमाल फिर, क्योंकि आप ऊँची आवाज़ में वहाँ पे जाके तो नहीं पढ़ सकते ना फिर, हैं। बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकते। हाँ, दिल में कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर बाहर से ही आप पढ़ जाएँगे तो आपकी बिस्मिल्लाह वो है पढ़ी हुई। तो आपके शर्मगाह और आपके जो भी प्राइवेट पार्ट और उनके दरमियान में पर्दा हायर अल्लाह ताला कर देते हैं। तो ये फिर अब छोटे बच्चे जो हैं उनको ये बताते हुए फिर उनको ये भी कईयों को होता है ना, क्योंकि जहाँ पे तो जीनीज करते हुए क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं कि जीनीज क्या चीज है, हवा है, तो ये जो है इनसे पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला के नबी ने हमें बताया है कि इनसे पनाह मांग के जाएं, क्योंकि वरना गुस्ल खाने में जाकर भी वो गलत काम करवा देते हैं। और फिर जो अंदर जाके बोलता है तो वो फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह के फरिश्तों की भी इज्जत करनी चाहिए। वो बाहर खड़े हो जाते हैं, वो बाहर रहते हैं, वो अंदर दाखिल नहीं होते। लेकिन अगर कोई वहां पे जाके बातें करे, वहां पे जाके करे तो फिर उनको अंदर दाखिल होना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि उन्होंने तो लिखना है ना। ये किरामन कातिबीन की मैं बात कर रही हूँ। किरामन कातबीन जो है वो कुछ औकात में इंसान से परे रहते हैं, जैसे जमा के वक्त भी वो मियाँ बीवी के से परे हो जाते हैं जब तक वो बात ना कोई करे। तो बात करते हैं तो उनको आना पड़ता है लिखने के लिए, तो इसलिए फिर हमें ख्याल रखना चाहिए। के लिए खाना खाने के लिए भी कहते हैं तो हम तो बातें ही सारी खाने के दरमियान ही करते हैं। अल्लाह हमें जी, हिदायत दे हम सबको, है ना? अल्लाह हम सबको हिदायत दे। टेबल पे बहुत कहते बैठे हैं हम फिर सब ही भी नहीं ऐसे हट ना, बच्चे, फिर हाँ, नहीं। बच्चे भी नहीं तो हम खुद भी जी, करने भूल बड़े। जाते हैं और साथ में हम्म, बैठे हुओं को कुछ ना कुछ बताने लगते हैं, कहने बात, हाँ लगते हैं, है जी, ना? जी, तो बैतुल खुला से बाहर आने के बाद गुफराना का कहना मसनून है, यानी कि अगर जी, पूरी दुआ नहीं आती हो तो गुफराना का अकेला बच्चों को अच्छा, बहुत अच्छा, आसानी से याद हो जाता है, बड़ों को भी बच्चों को। तो ये भी जब तक ये ऊपर वाली दुआ भी नहीं याद होती गुस्ल खाने में जाने से, तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ही पढ़ लिए, और नहीं कुछ ना कुछ तो, है ना? जी, कुछ तो पढ़ के जाएँ, कुछ तो प्रोटेक्शन लेके जाएँ। तो अब मुश्किल नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, है ना? खुबुस और खबाइस का जी, तर्जुमा पता चल जाएगा तो आप ही पता चल जाएगा। दुआ आ गई बस। तो अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा खरजा मिनल गाइति क़ाला गुफ़रानक, रवाहुल अहमद व तिर्मिज़ी व इब्न माजा सही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर तशरीफ लाते तो फरमाते, या अल्लाह मैं तेरी बख्शिश का तालिब हूँ। इसे अहमद, तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया है। गुफराना का कभी हमने सोचा मतलब भी क्या है, क्या देंगे तो अगर, हुँ?
मतलब भी क्या है हम सोचते हैं। मैं तेरी ए अल्लाह या अल्लाह मैं तेरी बख्शिश का तालिब हूँ, यानी कि मुझे तलब है कि तू मुझे बख्श दे, तू मुझे बख्श दे ए अल्लाह, गुफराना का, तू मुझे बख्श दे, मैं तालिब हूँ इसका। अहमद तिरमिज़ी और इब्ने माजा की ये रिवायत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ये हमारा क्या चैप्टर क्या था? तहारत के तहारत के मिसाइल। तहारत के मसाइल। तहारत के मसाइल का चैप्टर था। हम डीप डाउन नहीं इनमें जा रहे, हम तो चैप्टर बाय चैप्टर बस अहादीस और कुरान की आयत ही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना डिटेल में है ना। जी। अगर कुछ भी ना हो तो फिर भी इसकी डिटेल पाई जाती है, क्योंकि अहादीस मौजूद है और कुरान की आयत मौजूद है। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक अता फरमाए। यही है, दीन की समझ आ जाए तो फिर इंसान को मज़ा भी ज़्यादा आता है। फिर जी। इंसान एक हो जाता है ना कि कोई जो कुछ मर्ज़ी कहता रहे, आप फिर होते हैं कि तसल्ली के साथ होते हैं कि मैं ठीक कर रही हूँ जो कर रही हूँ। जी। मुझे पता है कि ये हदीस में आया है, ये अल्लाह के नबी ने किया है, अल्लाह ने फरमाई है बात, तो कोई कुछ भी कहता रहे फिर आप डटे रहते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही डामाडोल हों तो हमें किसी बात का खुद ही पता ना हो, फिर वो कोई बताता है, आके गुठलियाँ पढ़नी है कि नहीं, वो क्या पढ़ रहे हैं, हाँ जी, जी, ये बात पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें। अब मैं उसकी बात क्यों लेंगे? क्योंकि ये आम आदत है औरतों की, है ना? जब कोई फ़ौत होता है तो गुठलियाँ लाते हैं ना, हाँ जी, बताइए। ख़ास कर अब तो ढूँढ-ढूँढ के खत्म लाई कर रहे जाती है। हैं जी, हैं? हाँ जी। जी, आप तो खत्म ही कर रहे हैं अल्लाह जी। करे कि हमारे जहाँ से भी खत्म हो जाए। जी। अल्लाह करे कि पहले हमारे जहाँ करते से भी थे, हाँ खत्म हो जी। जाए, क्योंकि हमारी हमारी औरतें तो अभी भी ढूँढ-ढूँढ कर लाती हैं कि फलाँ के घर में थी, इतनी थी और इतनी रह गई हैं, कहाँ गई बाकी? हाँ और जी, उनको ऐसे एहतमाम के साथ फिर, होती है, हाँ जी, घर में, हाँ जी। है ना, एहतमाम के साथ अल्लाह ताला माफ़ करे किसी पूरी ज़माने पूरी में, की हुई थी, इसमें है ना? पूरी करें, हाँ जी। हुँ। हाँ जी। तो वो उनको पूरी करते हैं, और इतनी हूँ और इतनी हूँ, और वो कलमा उसको इतना पहुँच गया, और जो बंदा खुद ही नहीं पढ़ के गया उसको क्या पहुँचेगा? और जो जी। खुद ही हर वक़्त दिन रात पढ़ता रहेगा उसको वो क्या पहुँचाएँगे? ध्यान और है, और जगह पे है, और पढ़ मुँह से रहे हैं, और वो पढ़ भी ठीक रहे हैं कि नहीं, वो भी कोई पता नहीं। हुँ। पर जी अब चेंज हो रहा है थोड़ा-थोड़ा, ला वो इलाहा धीरे। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कितना ठीक पढ़ रहे हैं, जो उसको भी अजर मिलेगा और उसको भी पहुँचाने वाले को, है ना? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए टाइम लगेगा तो कौन इतनी गुठलियाँ पढ़ेगा? हुँ? जी। ये हम अपने रस्म-ओ-रिवाजों को बदलें, जी। बदलना चाहिए हमें। ये भी हम देखें, अगर कोई हाइज़ा है तो बस उसको तो कुछ ही चीज़ को हाथ नहीं लगाना। जी, ऐसे ही मैंने तो करते थे ये भी पहले। सुना था कि वो बिस्तरे तक और हर शै चेंज कर देती थी, जब हैज़ खत्म होता तो हर शै धोते थे। ना? जी। और जी, हम भी बताइए। एक-एक कपड़ा और सब कुछ जी। धोते थे, है ना? हाँ, जी। हर शै तो ये है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, और हम इतने कई कई दफ़ा नावाक़फ़ियत में वो 12 बजे तक सुबह के अगर आपको पीरियड आ गए हैं, तो वो क्योंकि 12 बज गए हैं तो इसलिए आपका वो रोज़ा रह गया है। अच्छा, हाँ जी, कहते 12 हैं बजे से जी। पहले होगा तो रोज़ा टूट गया है, अगर 12 बज गए हैं तो आपका रोज़ा रह गया बाद है। बाद में हाँ, वो तो रोज़ा है, हाँ है जी। ना? नहीं, लेकिन सिस्टम हमारा नहीं रहता। दीन बताता है कि 1-2 सेकंड पहले भी रोज़ा खोलने के पीरियड आ जाते हैं तो आपका रोज़ा गया। हाँ जी, लेकिन अजर वो तो तो मिलेगा आपको, सारा दिन आपने वो रोज़े की हालत में गुज़ारी है, वो तो अल्लाह जितना भी देना चाहे, लेकिन आपकी तरफ से वो रोज़े की क़ज़ा हो गई। आप खोले उस वक़्त ही जब, क्योंकि थोड़ी देर रहती है, चलो खोलने में कोई कुछ मिनट है, कोई आधा घंटा है, तो आप कहते हैं चलो कोई नहीं, मैं भी इंतज़ार कर लेती हूँ अब सारा दिन। तो वो लेकिन अगर आप वो 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपके पीरियड आ गए, आपको तकलीफ भी इतनी हो रही है, आप ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, खामखा अपने आप को मुसीबत में डाला हुआ नहीं, हाँ जी, है ना? ऐसे कहते थे कि हम नहीं रोज़ा रोज़ा नहीं तो है, वो आपका अब रोज़ा कोई हो गया। ज़माना था जब लुक-छुप के खाते थे, और फिर कई दफ़ा जी। सारा-सारा दिन वो रोज़े की हालत में ही होता था तकरीबन, क्योंकि खाते-पीते नहीं थे, घर वाले देख रहे हैं। जी। ना?
कभी बाप है इधर, कभी भाई है, वो कभी लोग देख रहे हैं तो इसलिए खाते-पीते नहीं, तो लोगों को पता चल जाएगा, है ना? ये शर्म और हया अपनी जगह पे थी, लेकिन ये हुँ, है कि इसमें हमें देखना ये है कि हमारा दीन क्या कहता है। कहीं हमारा दीन तो नहीं हो रहा इससे मुतासर, हमारे दीन का हर्ज तो नहीं हो रहा, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि हम अपने फ़राइज़ से भी गाफ़िल हो रहे हैं इसमें की वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। तो इसलिए हम इतना दीन कम से कम इतना दीन आ जाए कि हम हलाल हराम में और सही गलत में फ़र्क कर सकें, है ना? तो जी, अगर जी। इतना भी दीन नहीं है हमें, हम नहीं उसमें फ़र्क ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि क्या बात हो रही है, क्या हमने करना है, क्या नहीं करना चाहिए। जो मामला आता है फिर हम बिल्कुल डामाडोल होते हैं, हम बिल्कुल नबल्द होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता। हम कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, फिर क्या करना चाहिए, अब क्या होना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें क्या फिर हमें करती हैं, हमें फिर पीछे कर देती हैं अपने दीन से, पूरे फ़राइज़ अंजाम देने से, और अजर व सवाब भी कई दफ़ा अजर व सवाब की बजाय हम गुनाह ले रहे होते हैं। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व व बरकातहू। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला।